Hello and welcome to this lecture, students. Today we are going to discuss about the basic classification of choppers. We have already discussed about the basics of choppers, its functioning, and how we can control the operation of the chopper. That is the frequency and time control methods. So DC choppers can be classified as according to the input-output voltage levels. पहला voltage level होता है step down वाला चॉपर जिसमें द आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज, तो हम लोग बोलेंगे उसको स्टेप डाउन चॉपर. एंड द सेकंड वन इज स्टेप अप चॉपर, द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. And then the second classification is based on the direction of the output voltage and current. So on the basis of that, class A, class B, class C, class D, class E, 5 types of choppers can be defined. So in your syllabus, the second type of classification is not included. It is clearly mentioned in the syllabus that we have to study about the step down and step up chopper only. We do not have to go into the quadrant details. These are the quadrants. It decides the polarity of the voltage and current. So class A, class B, class C. You can see this is the class A operation. This is the class B operation when both the voltage and current is positive. When current is negative, voltage is positive. When both the quadrants are considered in class C. When this type of alignment is there, this is around the x-axis, this is around the y-axis, and this is all when all the four quadrants are considered. So this type of circuitry we are not going to study in our this particular syllabus. So we stick to the syllabus and we will only study about the basic operation. Okay, step up chopper and step down chopper. So this is the basic chopper operation, principle of step down chopper, जिसको हम बोलते हैं बक कन्वर्टर. जब स्टेप डाउन होगा तो बक होगा और जब स्टेप अप होगा तो बूस्ट होगा. तो बक बूस्ट बक ये सब आप लोग को सुनने मिलेगा, है ना. सो इन जनरल डीसी चॉपर कंसिस्ट ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. अब वो एससीआर भी हो सकता है, बीजेटी भी हो सकता है, पावर मॉसफेट भी हो सकता है, आईजीबीटी भी हो सकता है, जीटीओ, एमसीटी एक्सेट्रा, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो कोई से भी स्विचिंग डिवाइस जो है हम उसमें यूज कर सकते हैं चॉपिंग करने के लिए. ठीक. इनपुट डीसी पावर सप्लाई एलिमेंट्स आरएलसी होता ही है और कोई भी आउटपुट लोड. ओके. द एवरेज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग ऑन पीरियड एंड ऑफ पीरियड ऑफ द स्विच, जिसको हम लोग ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ लिया है. A commutation circuitry is required for SCR based chopper circuit. Therefore, in general, gate commutation devices based choppers have replaced the SCR based choppers. तो जो गेट कम्यूटेशन वाले जो चॉपर हैं उसने रिप्लेस कर दिया किसको, SCR बेस्ड चॉपर्स को. क्यों? क्योंकि कम्यूटेशन सर्किटरी की जरूरत पड़ती. However, for high voltage and high current applications, SCR based choppers are used. ठीक है. तो दोनों में एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज करेंगे. The variation in on and off periods of the switch provides an output voltage with an adjustable average value. On off position के अकॉर्डिंग आप आउटपुट वोल्टेज को ऑब्जर्व करेंगे. The power diode operates in freewheeling mode to provide a path to load current when switch is off. The smoothing inductor filters out the ripples in the load current. Switch S is kept conducting for time T on and it is blocked for time T off. The chopper load voltage is shown in figure. Waveform is shown in figure 8.5. तो ये आपका स्विच है जो ऑन और ऑफ होगा. ये आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड है जिसके क्रॉस आप वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये रिपल्स को रिमूव करने के लिए ये आपका लोड है. ये आपका वोल्टेज है जो डीसी वोल्टेज है, यहाँ से सोर्स करंट फ्लो हो रहा है. अब ऑन ऑफ पीरियड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द ऑन एंड ऑफ पीरियड, अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी साइकिल ऑफ द स्विच, आपको ये वोल्टेज मिलेगा इसके अक्रॉस, यहाँ से करंट फ्लो होते हुए मिलेगा. और ये जो करंट है उसमें जितने भी रिपल होंगे उसको इंडक्टर फिल्टर आउट करेगा. इंडक्टर यहाँ पे फिल्टर के जैसे एक्ट कर रहा है और लोड के अक्रॉस आपको वैल्यू मिलेगी. दिस इज द बेसिक चॉपर ऑपरेशन. ठीक है. फिर स्टडिंग स्टेप डाउन ना. तो अब ये देखो, ये वेवफॉर्म हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. आउटपुट वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म भी लास्ट लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ऑन पीरियड में वैल्यू इंक्रीज होती है, ऑफ में डिक्रीज, ऑन में इंक्रीज, ऑफ में डिक्रीज, है ना. इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है. During the period T on, when the chopper is on, the supply terminals are connected to the load terminals. During the interval T off, when the chopper is off, load current flows through the freewheeling diode.
तो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जब ऑफ रहेगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जाएगा, ऑन रहेगा तो नॉर्मली जैसे इंडक्टर के थ्रू लोड के अक्रॉस आएगा। एज अ रिजल्ट लोड टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय डीएफ एंड लोड वोल्टेज इज देयरफॉर जीरो ड्यूरिंग टी ऑफ। ऑब्वियसली क्योंकि पैरेलल सर्किट है यहाँ पे, अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे ये जब ऑफ रहेगा तो आपको करंट यहाँ पे हम वोल्टेज मिलेगा, तो ये इसको क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। तो ऑफ पीरियड में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, करंट जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात इसकी ऑफ पीरियड और ऑन पीरियड की। इन दिस मैनर अ चॉपर डीसी वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड, अ चॉप्ड डीसी वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड एट द लोड टर्मिनल। चॉप्ड मतलब चॉपिंग हो गई ना, ऑन रहा फिर ऑफ में जीरो हो गया, ऑन रहा फिर ऑफ में जीरो हो गया, तो चॉपिंग हो गई, कंसिस्टेंटली आपको नहीं मिल रहा है आउटपुट। ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो जो बेसिक ऑपरेशन है ना वो स्टेप डाउन वाला ही ऑपरेशन है। टी ऑन टी ऑफ में आपको डिफाइन कर चुका हूँ, मैं फिर से इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आपको यही सर्किटरी एक्सप्लेन करनी, यही बेसिक मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करनी। अल्फा हम लोग डिफाइन कर चुके थे, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी भी हम लोग डिफाइन कर चुके थे। दिस इज ऑल, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएगी, स्टेप डाउन चॉपर में आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बक चॉपर। ठीक है, और बाकी तो आरएमएस वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला है जो है उसको आप लोग इजीली याद रख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, मैं नोट्स दे दूंगा आपको, उसमें आप इसको सॉल्व कर लेना। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं चॉपर के ऊपर एग्जाम में और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो फॉर्मूला आपको ऊपर डिराइव्ड है ना उसी से ही हमको पढ़ना है। अब हम स्टेप अप चॉपर की बात करते हैं। ये तो हुई स्टेप डाउन चॉपर की बात, तो जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने जब बेसिक ऑपरेशन पढ़ा ना वो स्टेप डाउन ही था। ठीक है, जिसको हम बक चॉपर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप अप चॉपर की। द चॉपर कॉन्फ़िगरेशन जो हमने 8.4 में पढ़ा पिछले फिगर में, इज कैपेबल ऑफ गिविंग अ मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द इनपुट डीसी वोल्टेज। जो भी डीसी वोल्टेज हम लोग लगाएंगे इनपुट में उससे कम ही रहेगी आउटपुट की वैल्यू, इसलिए उसको स्टेप डाउन बोलते हैं, बक चॉपर बोलते हैं। Therefore, the chopper configuration of 8.4 is called step down chopper. ठीक है, however the chopper can also be used to produce higher voltages at the load than the input voltage. जब मुझे आउटपुट वोल्टेज या लोड वोल्टेज ज्यादा मिले इनपुट वोल्टेज से तो मैं उसको क्या बोलूंगा, स्टेप अप चॉपर बोलूंगा, बूस्ट चॉपर बोलूंगा। टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, when you are boosting the voltage, when you are taking the load voltage greater than the input voltage, then ultimately you are boosting the voltage, इसलिए हम उसको बोलते हैं बूस्ट चॉपर। तो पहला वाला केस स्टेप डाउन बक चॉपर होता है और दूसरा वाला केस जो स्टेप अप है वो बूस्ट चॉपर होता है। तो ये हो गया उसका सर्किट। अब आप देखिए स्विच को आपने सीरीज की जगह पैरेलल पोजीशन में लगा दिया, यहाँ पे आपने इंडक्टर को लगाया, डायोड को आपने रिप्लेस कर दिया, एवरीथिंग इज चेंज्ड। ये डायोड यहाँ पे था, ये स्विच यहाँ पे था, इंडक्टर यहाँ पे था, तो पूरा आपने कहना चाहिए रोटेशन ही कर दिया है। क्या होता है, when the chopper is on, the inductor L is connected to the power supply। जब चॉपर ऑन होता है तो इंडक्टर जो है वो किससे कनेक्ट हो जाता है, पावर सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी, टी ऑन टाइम पे एनर्जी स्टोर कर लेता है इंडक्टर तो काम ही एनर्जी स्टोर करना करंट के फॉर्म में। और जब चॉपर ऑफ होता है तो इंडक्टर का करंट है इट इज फोर्स टू फ्लो थ्रू द डायोड। अब देखो जब ऑफ हो जाएगा तो ये स्विच डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जब ऑफ होगा तो, जब ऑन होगा तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये लूप बनेगा, है ना। और जब ऑफ होगा तो ये जो है किसको पास करेगा, करंट फ्री व्हीलिंग डायोड डी को पास करेगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो थायरिस्टर भी हो सकता है ना, यहाँ पे हम लोग उसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोल रहे हैं। तो when the chopper is off, the inductor current is forced to flow through the diode and load for a period t off. As the current tends to decrease, polarity of the EMF induced in the inductor L is reversed to that of shown in figure 8.6, and as a result voltage across the load E0 becomes E0 equals to EDC प्लस एल डी आई बाई डी टी। क्यों पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सिर्फ फिर से समझते हैं। जैसे ही ऑफ पीरियड में डायोड के अक्रॉस जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, करंट डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब उसको पावर सप्लाई नहीं मिल रही है। जब पावर सप्लाई मिल रही थी तो करंट चार्ज हो रहा था, अब करंट क्या होगा, उस डायोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा, करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। तो पोलैरिटी जो इंड्यूस हुई थी ना, ईएमएफ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था इंडक्टर के क्रॉस, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिकेइंग नेचर ऑफ द करंट अक्रॉस द फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके, सो एज अ रिजल्ट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ये जो लोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज उसके अक्रॉस ई नॉट इक्वल्स टू ईडीसी, ये आपका ईडीसी प्लस
जो इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल रहा है वो प्लस इसके अक्रॉस, क्योंकि भाई आप अगर समेशन लेना चाहोगे मुझे यहाँ पे कितना वोल्टेज आया है कैसे पता चलेगा, तो आपको आपको इसका और इसका समेशन लेना पड़ेगा। यही तो दो वोल्टेज आपको दिख रहे हैं इसमें, है ना। ठीक है, तो इन दोनों का समेशन ले लेंगे हम लोग। तो अगर आप ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे ना, अगर आप केवीएल लगाने की कोशिश करेंगे और नॉर्मल कन्वेंशन से जाएंगे, तो ये आपको आपको इसको माइनस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा माइनस? क्योंकि देखिए अगर मैं करंट यहाँ पे लूप में अगर करंट फ्लो कराता हूँ तो यहाँ पे किससे एंटर करेगा? वो माइनस से, और यहाँ पे किससे एंटर करेगा? वो प्लस से। तो ई नॉट क्या हो जाएगा? ईडीसी माइनस दिस, बट हमको बूस्ट करना है तो क्या होना चाहिए? ईडीसी प्लस दिस, तो इसको भी माइनस होना चाहिए, यहाँ से भी माइनस एंटरिंग, यहाँ से भी माइनस एंटरिंग, तब तो दोनों ऐड होंगे ना। वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के फ्लो होने के कारण डिकेइंग नेचर है करंट का, डिकेइंग नेचर होने के कारण ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। और वो वोल्टेज रिड्यूस होने के कारण आपको जो टोटल करंट है वो समेशन, टोटल जो वोल्टेज है वो आपको सम अप होके मिल रहा है, और वोल्टेज इतना है। ये वोल्टेज होता है किसके क्रॉस? इंडक्टर के क्रॉस। एल डी आई बाई डी टी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ आई क्या है? सोर्स करंट आई एस है, और टी तो टाइम है। So inductor voltage adds to the source voltage to force the inductor current into the load. In this manner, the energy stored in the inductor is released to the load. जो भी एनर्जी इंडक्टर के अक्रॉस स्टोर थी वो रिलीज हो जाती है लोड में। Here, higher value of inductance L is preferred for getting lesser ripple in the output. So during the time t on, when the chopper is on, the energy input to the inductor, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और फिर टी ऑफ के टाइम पे जब ऑफ हो जाता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है इस फॉर्म में। ठीक है, सो कंसीडरिंग द सिस्टम टू बी लॉसलेस, हम लोग स्टेडी स्टेट करके इस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। टी ऑन इक्वल्स टू टी ऑफ करके, मतलब टी ऑन टाइम पे जितनी एनर्जी इक्वल्स टू टी ऑफ टाइम पे जितनी एनर्जी, ये फॉर्मूला जो है निकाला गया है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस हैं। आपको जो है ई नॉट के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करना है, तो आप टी ऑन टी ऑफ के टर्म्स में लाके उसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। सो ई नॉट होता है ईडीसी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या है? टी ऑन अपॉन टी, ड्यूटी साइकिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और अपने प्रॉब्लम में जब आपको पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर या बक बूस्ट चॉपर का डिफरेंस बताओ, तो आप उसको उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये ड्यूटी साइकिल के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स है, ये आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ यही बताया गया कि 0 से 1 के लिए और इन्फिनिटी के लिए किस तरीके से वर्किंग होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर, दैट इज द स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन चॉपर। एग्जाम में पूछ सकता है स्टेप अप चॉपर स्टेप डाउन चॉपर का डिफरेंस या एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर बक चॉपर बूस्ट चॉपर या बक बूस्ट चॉपर क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है एग्जाम। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।